Hello and welcome back to my channel. Good morning to every banking aspirant. So कल फाइनली SBI जूनियर एसोसिएट्स का नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, क्लोज टू 14,000 वैकेंसीज हैं और ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होने वाला है हर उन बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो कि काफ़ी सालों से टॉयल कर रहे हैं टू गेट इनटू बैंकिंग सेक्टर। तो अब सिंस नोटिफिकेशन इज़ आउट, तो अब ये ज़रूरी है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। उसी कड़ी में आज फिर हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम गिविंग एन SBI CLERK इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट टेस्ट। एग्री एंड कंटिन्यू। ओके, सो पहला क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस इज ग्रामेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको एरर फाइंड करना है। मार्क हैज योर आंसर। ओके, so John has always been a dreamer, no problem in this sentence, in this part, and wants to fulfill, again wants भी सही है because John singular noun है तो wants again singular verb यूज हो रहा है। It's childhood dream, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स का यूज हुआ है यहाँ पे गलत है बिकॉज जॉन के लिए हिज यूज होना चाहिए था, दैट्स व्हाई C इज रॉन्ग। From 6 to 9 I am baking the cake for Sam's birthday who was a dear friend of mine। ओके, आगे ये यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ टेंस है। अगर 6 से 9 I am baking the cake for Sam's birthday who was a dear friend of mine नहीं होना चाहिए, who is a dear friend of mine होना चाहिए। So 4 यहाँ पे गलत है। 3 It's been a long time, कोई गलती नहीं है इसमें। Since I have done some serious cleaning of the house, इसमें भी कोई एरर नहीं लग रहा है। So I will have cleaned the house and you can prepare lunch। ओके, यहाँ पे C में गलती है, I will have cleaned the house। Wherever there is stored water in any container, dengue mosquitoes is laying their eggs। अगेन यहाँ पे is जो है ये रॉन्गली यूज हुआ है बिकॉज मॉस्किटोज है, प्लूरल है तो आर यूज होना चाहिए था ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। सी यहाँ पे गलत है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, राइट। ओके, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी एज सेम एज द हिल्स, नहीं एज सेम एज द हिल्स नहीं होता, ये एक्चुअली एक फ्रेज है विच गोज लाइक एज ओल्ड एज द हिल्स। तो यहाँ पे है एज ओल्ड एज द हिल्स। 5 कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन इसका थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज लास्ट ईयर जिन्होंने भी SBI JA का एग्जामिनेशन दिया होगा उनको पता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो छोटा था बट बहुत ट्रिकी था और ऑप्शन भी उसके काफ़ी ट्रिकी थे, डाइसी थे। तो मेक श्योर कि अच्छे से करो। The Reserve Bank of India has proposed to retain the current numerical framework for the target and tolerance band for inflation target of 4% with a plus or minus 2% tolerance band for the next 5 years. In the wake of the repetitive incidents of supply shock, still elevated inflation expectations and projection errors, it has also recommended refinements in the Monetary Policy Committee framework to make it more relevant and operationally efficient. The current tolerance band of plus or minus 2% may be retained notwithstanding the central tendency emerging from the country experience of lowering targets and narrowing bands over time. The RBI said in its report on currency and finance, this means inflation can go up to 6% and come down to 2%. Finance Minister Nirmala Sitharaman had recently said the government would review the inflation target band as the 5-year term for the MPC Nielsen and the 6-member MPC headed by the RBI governor decides on the monetary policy keeping in mind this inflation target band. Retail inflation had fallen to a 16-month low of 4.06% in January due to easing of food and vegetable prices. The RBI has proposed to limit the shut period for the MPC to start 7 days before policy announcement and even 3 days after the day policy is announced, staggering onboarding of external members on the committee. An official communication policy document for the MP releasing the minutes within a week of the policy announcement and releasing the policy at a prefixed and pre-announced time.
It is also proposed to maintain the transcripts of the MPC meeting and its release with a lag of 5 to 7 years at a future date, and provide a more explicit forward guidance on the interest rate path at a future date as the projection process is strengthened further over time. The RBI is also for modifying the definition of failure from the current 3 consecutive quarters norm of inflation remaining outside the tolerance band to 4 consecutive quarters. Now, let it be said कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये टेक्निकल हो गया, एंड मैंने अपने प्रीवियस मॉक्स में भी बताया कि अगर मॉक छोटा भी हो बट इफ इट गेट्स टेक्निकल तो आपको आंसर करने में बहुत ज़्यादा कॉशन रखने की ज़रूरत है, और वही हुआ है 6 to 13 7 क्वेश्चन है इसमें. आई एम श्योर कि आई विल लीव 2 to 3 क्वेश्चन बिकॉज बीच में काफ़ी ट्रिकी हुआ है, काफ़ी टेक्निकल हो गया है. दैट्स वाई एंटोनिम ऑफ वर्ड एलिवेटेड ये कर लेना अच्छा है. एलिवेटेड मतलब टू अपलिफ्ट, ऊंचा उठाना. इसका एंटोनिम नीचे ले जाना होगा तो डिमोट होगा. सिनोनिम ऑफ कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब रेगुलरली, राइट, विदाउट एनी गैप. तो कंसेक्यूटिव का सिनोनिम क्या होगा? सक्सेसिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. Which of the following statement is false according to the above passage? Now, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. RBI didn't propose to retain the numerical framework for the target and tolerance. ये गलत है. Yes, this is false. RBI has recommended to make the policy more relevant. Yes. The RBI has also proposed to transfer. Yes. RBI is making reforms in the definition. Yes. No change in tolerance band for required because of existing high inflation supply. Now, I don't remember reading this line anywhere in the entire passage, so I'm not sure about the option number 5. And RBI didn't propose to retain the numerical, but I think RBI did propose to retain the numerical framework, right? We had read it somewhere. Let me go through it once again. कहीं पे मिला होगा. 5 supply, RBI has proposed to, okay, numerical again. ये तो पहले ही सेंटेंस में है. The RBI has proposed to, और यहाँ पे बोला है कि RBI didn't propose, तो ये गलत हो गया. Why had retail inflation fallen? तो ये यहाँ पे बहुत easy आंसर है, because यहाँ पे explicitly mention है here. See, retail inflation had fallen to a 16-month low of 4.06% in January due to easing of food and vegetable prices. तो here, what is the main target of monetary policy? अगर आपको याद हो तो मेन पॉलिसी क्या है कि इन्फ्लेशन को चेक में रखना है. एक टॉलरेंस बैंड दिया हुआ है, उसके अंदर ही रखना है. तो फेलियर ऑफ करंट सिचुएशन, मैनेजिंग सप्लाई स्टॉक, मेंटेनिंग द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन टारगेट बैंड. इजी. 6. According to RBI, what is the limit of shut period of MPC? Shut period modified for failure. Now, what is shut period? Do you guys recall coming across this word shut period? Because मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि shut period नाम का कोई चीज़ पढ़ाओ. Propose maintaining transcript, release, future date, no explicit on interest, future date, strengthen over time, modifying. What? Where is shut period? I don't remember. It should start 4 days before the policy announcement. Where is shut period? Can we leave this question? Yes, it's better we leave it. What is the recent numerical framework for the target and tolerances? This is the upper limit is 4%, no, upper limit is 6% and lower limit is 2%. Who is the head of MPC? Very easy. अगर इसको आप पैसेज ना भी पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए the RBI governor is the head of the MPC. So we are done with the passage. ठीक, पैसेज was technical as I said, लेकिन पैसेज के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात थी नहीं. दैट्स वाई हमने एक ही छोड़ा, और वो भी डूएबल है. दैट विल डू. इसको मार्क कर देते हैं, मार्क एंड नेक्स्ट करते हैं. जब टाइम बचेगा लास्ट में. ओह, वी हैव ओनली 5 minutes in hand. And how many questions are there? Only 20 questions, no problem. In the following sentence, 4 words are given in bold and is misspelled. ये काफ़ी इजी है. मिसस्पेल्ड वाला हमेशा इजी होता है. मेक श्योर कि आप इसको करके ही आओ. डिटेक्टिव इजी है.
थॉरो का स्पेलिंग रॉन्ग है, THOROUGH होता है, बिल्डिंग सही है, कैंपस सही है, तो बी शुड बी द आंसर। बायोडाइवर्सिटी इमेंसली आई थिंक सही है, इंटीग्रेटेड सही है, इंटरडिपेंडेंसीज गलत है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि इंटरडिपेंडेंसीज गलत है। ओके यहाँ पे सिंगल फिलर है, अगेन इजी होगा। दे अपील टू द जज टू हैव डैश ऑन देयर चाइल्ड, टू हैव मर्सी ऑन देयर चाइल्ड। अब चाइल्ड पे डिस्ट्रेस, अपने चाइल्ड पे डिस्ट्रेस करने के लिए कोई मर्सी करेगा नहीं, वेन का यहाँ कोई मीनिंग नहीं आता। टू हैव इनोसेंस नहीं आएगा, एंड ऑब्लाइज भी नहीं होगा, तो मर्सी ही होगा। द नॉवेल वॉज क्रिटिकली डैश बट डिड नॉट सेल वेल, वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड बिकॉज क्रिटिकली एक्लेम था बट डिड नॉट सेल वेल। इसका कहने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव वर्ड में आएगा, सो अक्लेम शुड बी द राइट वर्ड। ऐसे भी अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकली एक्लेम्ड एक वर्ड बार बार पढ़ने को आता है। शी डैश ऑन द सोफा आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम होम आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे, तो वो सोफा पे क्या की, सोफा को स्क्रूटिनाइज तो की नहीं। रिपोज हो सकता है, रिपोज भी आराम ही होता है, रिलीव्ड केक्ड स्क्रूटिनाइज। आई थिंक यहाँ पे रिपोज ज़्यादा सुटेबल वर्ड लग रहा है, बट अगेन ये दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है वाइल आंसरिंग योर वाइल टेकिंग योर ऑप्शंस, बिकॉज सी डैश रिपोज भी हो सकता है, रिलीव भी हो सकता है, केटर्ड स्क्रूटिनाइज्ड एक्नॉलेज तो होगा नहीं ना। आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड गो विथ रिपोज और रिलीव्ड। रिलीव्ड ऑन द सोफा, आई एम गोइंग विथ रिलीव्ड। He looked pale after his death, after his delight, after his ordeal. See, pale लग रहा है तो मतलब he is not looking at his best, और वो कभी होता है जब कोई ordeal हो, जब कोई विषम परिस्थिति हो तभी आदमी pale हो जाता है, तो यहाँ पे ordeal होगा राइट आंसर। Last, the kid was dashed from his car by terrorist. तो kid अपने कार से क्या किया गया, तो obviously abduct किया होगा, he was abducted. terrorist ऐसे भी और करते ही क्या, abduct ही करते हैं। सो हमने कर लिया है ऑलमोस्ट सारा। एक 19 क्यों मिस हुआ, 19 तो वी डिड ना, यस 20 भी हमने कर लिया। एक जो मार्क करके रखा था 11, अच्छा 11 11 12 12 हमने कर लिया। अच्छा 12 को मार्क कर दिया था क्या, माय बैड, 11 को मार्क करना था। Shut period. Now let's find where the shut period has been mentioned. Inflation band, tolerance band तो है, elevated inflation projection, monetary make it relevant, current tolerance plus minus to retain notwithstanding central tendency, targets monetary come down, had recently said would review inflation 5 year. The 6-member MPC decides on monitoring mind inflation target, inflation fallen 16, easing RBI limit. Yes, here. Here the shut period has been mentioned. The RBI has proposed to limit the shut period for the MPC to start 7 days before the policy announcement and end 3 days after the policy. So 7 days before the announcement and 3 days after the announcement. Where it is? No. 7 days before the announcement and 1 day. No. 7 days before the announcement and yes, here. So easy. एक्चुअली सारा क्वेश्चन बेसिकली ये इजी टू मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं था, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी था, बिल्कुल डोएबल था। नाउ लेट्स सेव एंड नेक्स्ट, और अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं कि हाउ मच वी स्कोर्ड। तो इनकरेक्ट हुआ, नो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये पूरा का पूरा डोएबल था। लेट्स सी कहाँ पे हमने गलती करी है। दो गलती नहीं होना चाहिए था, इनफैक्ट इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए था। ये सोल्यूशन सेकंड में ही गलती हो गया, क्या गलती हुआ, एरर में क्या गलती हुआ, फ्रॉम 6 to 9 आई एम बेकिंग द केक। ओके ये बी में गलत होना चाहिए था, राइट, यस। यहाँ पे आई वॉज बेकिंग द केक, हाउ कुड आई मिस दिस, ओ गॉड, यही होता है सिल्ली सिल्ली सिल्ली। 18 में क्या गलती हुआ, अच्छा यहाँ पे रिपोज होना चाहिए था। आई टोल्ड यू रिपोज और रिलीव में मेरे को डाउट था पहले से ही, बट रिपोज ही हुआ फाइनली, कोई नहीं है।
अच्छा है, इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और फ्रॉम नाउ ऑन सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश का ऑन अ डेली बेसिस आई विल बी पोस्टिंग, सो स्टिक अराउंड। और आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।